Hello, class 11th. Today we'll start our third chapter, but before this, let's discuss about the topics deleted by CBSE from your course. Okay, first and second chapter we already have discussed, and the second chapter, choice of forms of business organization, is deleted, and I also have not taught you. Now, in third chapter, which we are going to start after this discussion, global enterprises and joint ventures and public private partnership, all three concepts has been deleted. Okay, so means here only public sector enterprises remain, because private and public sector, okay, so global enterprises deleted, and private sector enterprises we already have discussed here in second chapter. So only public sector enterprises are left, and we will discuss. Now in fourth chapter, postal services and all these services, mail, registered post, parcel, speed post, courier, meaning, all these things are deleted. Okay, from chapter 5, this BPO concept, its need and its scope has been deleted. Okay, and from chapter 6, business ethics is a concept that is deleted. Now part B, okay, part B, finance and trade, from chapter 7. If you have NCERT book, children, then chapter 7 may be different, because NCERT book में chapter 7 company formation of company वाला दिया हुआ है, but from last year this chapter is merged with your second chapter. Okay, and we already have discussed. So 7th chapter in your other books, other reference book, is given sources of business finance, and that only you have to study. From that chapter also, this borrowed fund ICT concept is deleted. And from 9th chapter, types of retail trade and GST concept is deleted. And from 10th chapter, export ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर और इम्पोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ही ये दो थी बच्चों, और ये दोनों ही पूरी डिलीट हो गई, तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में. ओके, मीन्स डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल, मीन्स फुल चैप्टर हैज़ बिन डिलीटेड. देखा जाए तो केवल इंटरनेशनल ट्रेड मीनिंग और इसका जो बेनिफिट्स है, ओके, केवल वो ही बचा है कंसेप्ट, बाकी और सब कुछ डिलीट हो चुका है इस चैप्टर में से. तो आपका कोर्स काफ़ी रिड्यूस हो गया है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर. Sorry, third chapter we are going to start. So second chapter public and private global enterprises. Global enterprises. See, private sector enterprises means the enterprises which are owned by individuals or a group of individuals. Okay, the various forms of business organization are sole proprietorship, partnership, HUF, cooperative society, and company. Now all these private sector enterprises we already have discussed in our second chapter. Okay, and now in this third chapter we will be discussing public sector enterprises. Okay, this is for one thing. Now the second thing is, before we begin this chapter, one very confusing point I want to explain you, children, that children generally get confused in private company and private sector. Okay, what do question आता है private, what do you mean by private sector, और बच्चे लिख के आ जाते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, और फिर वो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है. तो प्राइवेट सेक्टर एक वास्ट कंसेप्ट है, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल टॉपिक है. ओके, तो प्लीज़ बी क्लियर इन योर माइंड्स दैट whenever private company is asked, you will write about company, and whenever private sector will be asked, you will write about it. Okay, because private sector enterprises are owned by private individuals, whereas public sector enterprises are owned by state government or central government. Okay, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, whereas public sector enterprises are having the objective of public welfare. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में सोशल ऑब्जेक्टिव उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट पब्लिक सेक्टर में जो सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस
खोले ही इसलिए जाते हैं ताकि बैकवर्ड एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सके या फिर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सके, ठीक है, और मीन्स पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी करना है, इसी के लिए बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लॉन्च होते हैं. ओके, so these are the few differences between private and public sector enterprises. Now let us discuss the meaning of public sector enterprise. That public sector consists of various organizations which are owned, managed by central or state government or by both governments. One more important thing children, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो लोकल गवर्नमेंट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी म्यूनसिपैलिटी है, इसको भी कुछ राइट्स हैं, इनके पास भी कुछ पावर्स हैं, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ठीक है, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, दैट मीन्स डू द enterprises owned by local government would also be considered as public sector enterprises. तो वहाँ पे आंसर लिखना होता है नो, ठीक है, तो उसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. तो यहाँ पे प्लीज़ बी क्लियर दैट enterprises which are owned by central or state government or by both, they are known as public sector enterprises. Okay, the government participates in economic activity of the country through these enterprises. क्योंकि इंडिया में तो मिक्स्ड इकनॉमी है, ठीक है, तो मिक्स्ड इकनॉमी में क्या होता है कि कुछ प्राइवेटली ओन बिजनेसेस होते हैं और कुछ गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं, है ना, दोनों ही सेक्टर्स को परमिशन होती है अपने अपने एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करने के लिए. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट. ऑल थ्री गवर्नमेंट्स नहीं लिखा है, फिर इस बात पे ध्यान देना. पब्लिक वेलफेयर और सर्विस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ओके, एंड इट इज़ अकाउंटेबल टू पब्लिक, whereas private sectors are not accountable to public. Private sectors are accountable to their owners only, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं. Now let us discuss the forms of public enterprises. जैसे उसमें 5 फॉर्म्स थे प्राइवेट सेक्टर में, वैसे ही पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे 3 फॉर्म्स हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज. ओके, now let us discuss departmental undertakings. So these are established as departments of ministry. जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करेगा एंड आर फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, ये डिफेंस ले लो, ठीक है, ये सारे क्या हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, वो सीधे उस मिनिस्ट्री को ही वो मिनिस्ट्री के लिए ही वो मीन्स वहाँ से ही मैनेज होते हैं, वहाँ से ही ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है, और वहीं से ये फाइनेंस्ड होते हैं, ठीक है. इसीलिए तो जब कभी कोई बड़ा जो जैसे रेलवे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है ना, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो रेलवे मिनिस्टर है वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और वो अपना रेजिग्नेशन तक वो दे देता है, ठीक है, और कई बार अगर वो नहीं देता है तो पब्लिक उसके लिए फोर्स करती है, पब्लिक उसके लिए कैंपेन करती है, और या फिर मीडिया में ये बात आती है. ओके, बिकॉज दे आर मोस्ट अकाउंटेबल टू द पब्लिक. ओके, now the features, it has no separate legal entity, ठीक है, इसका अपना कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, जैसे कंपनीज में होता है वैसे इसमें नहीं होता है, ठीक है. ये जो हैं these are departments, these enterprises are established as department of the ministry, ठीक है, मिनिस्ट्री का ही पूरा कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री से ही ऑर्डर्स आते हैं, मिनिस्ट्री से ही फाइनेंस आता है, अपने ओन डिसीजंस ये नहीं ले सकते. ओके, नाउ सेकंड, फाइनेंस. इट इज़ फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट, allocation of the government and all its earnings go to government treasury. और इसकी जो अर्निंग्स है वो भी क्या है, वो ट्रेजरी में
वो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उसमें वो सबमिट होती है. ओके. देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट. ऑडिटिंग के लिए भी रूल्स होते हैं. द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट. ओके. देन स्टाफिंग में क्या होता है? इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स. ठीक है. जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो है वो आईएएस ऑफिसर्स उनको उनके हेड होते हैं. ओके. आईएएस ऑफिसर. और इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. मींस जो सरकार के जैसे नौकर उनको कह लो. ओके. मींस जो सिविल सर्वेंट्स पे जो भी रूल्स ओके रेगुलेशंस जो एप्लीकेबल होते हैं वही इनके स्टाफ पर एप्लीकेबल होते हैं. वही पेमेंट सर्विसेज, वही रिटायरमेंट सर्विसेज वही होती है. एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री. और फिर मिनिस्ट्री जो है वो पब्लिक को अकाउंटेबल होती है. मीन्स बिकॉज मिनिस्ट्री डायरेक्ट वो पब्लिक से अकाउंटेबल होती है. और अगर सपोज़ कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो मिनिस्ट्री उसके लिए रिज़ाइन तक कर देती है. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस इट्स मेरिट्स. It is more effective in achieving the objective laid down by government as it is under the direct control of government. जो 3 फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, उन तीनों फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल इसी तरह के डिपार्टमेंट्स पे होता है. रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे टेलीफोन डिपार्टमेंट हो या पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हो. ठीक है. इन पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ government income as its revenue goes to government treasury. Okay. It is accountable to parliament for all its actions which ensure proper utilization of funds. Okay. Because पार्लियामेंट से ही बजट इशू हो रहा है. पार्लियामेंट का जो बजट सेशन होता है उसमें एक सेपरेट इसके लिए बजट सेंक्शन होता है. और सो इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट for all its actions which ensures proper utilization of funds. अगर कोई भी मिनिस्ट्री अगर ठीक से काम नहीं कर रही होती है तो पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन रेज हो सकता है. सो इट इज़ डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. एंड लास्ट मेरिट इज it is suitable for activities where secrecy and strict control is required. जिन बिजनेसेस में बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट का पूरा वहाँ पे एक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे ये वाला फॉर्म सबसे ज़्यादा सूटेबल है. ओके. बट डीमेरिट्स भी तो हैं. सो डीमेरिट्स आर इट सफ़र्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन देयर वर्किंग. बिकॉज मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है तो जो मिनिस्टर्स हैं वो जब तक ऑर्डर नहीं देंगे या अगर उन्होंने कोई किसी की पर्सनल उन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट की है, ओके, उन्होंने सिफारिश की है तो फिर वो उसे मानना भी होगा. तो यहाँ पे इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की. ठीक है. और मिनिस्टर्स की. दैन इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेसेस. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं है. अगर वो फंड को यूज़ करना चाहें, अगर वो थोड़ा अगर बजट सपोज़ कम है और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और अमाउंट वो स्पेंड कर दें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो वो नहीं कर सकते. ओके. उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है. तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ नहीं है. देन इट सफ़र्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क. बिकॉज फाइल आगे ट्रांसफ़र नहीं होती है. रेड टेपिज्म इज़ दिस इज मीन्स सोशल ईविल which is existed in the government departments especially. Okay. तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने की वजह से, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होने की वजह से रेड टेपिज्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है. दैन these organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide goods and adequate services to them. मीन्स जनरली इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स क्वालिटी वाइज हो. अभी जैसे रेलवे की सर्विसेज हैं उतनी ज़्यादा क्वालिटी सर्विसेज हो, हम देखते हैं ना इन डे टू डे लाइफ वी एक्सपीरियंसेस. सो मीन्स दे आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स.
Then such organizations are managed by civil servants and government officials who may not necessarily expertise and experience in management. Okay. And then where it is suitability, where full government control is needed and where secrecy is very important, such as defense, जहाँ पे बहुत ज़्यादा secrecy की requirement है या फिर full government control requirement required है, तो वहाँ पे departmental undertaking best form है. Okay. Now 2 more forms are left, statutory corporations and government companies, which we will discuss in our next session. Till then, goodbye. God bless you.